أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہو گیا تھا؟ نیٹ کا مسئلہ تھا یا نہیں، وہ چل رہا تھا، وہ آن کیے تو زوم میں بھی کیے لیکن وہ چل ہی نہیں رہا تھا، بند ہو گیا ایک دم۔ چل پڑھ۔ الدرس الخامس، ہم، ٹھیک ہے۔ لیسن 5، ہم، سعید کتاب محمد حاضر یا یاسر۔ ہم۔ کیا کتاب محمد، اس کا کیا میننگ ہوگا؟ کتاب محمد، کتاب محمد، محمد محمد کی محمد محمد کی کتاب۔ محمد کی کتاب، کتاب محمد، محمد کی کتاب، کتاب اللہ، کتاب کتاب اللہ کا کیا میننگ ہوگا؟ اس کا کیا میننگ ہوگا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب۔ ہم، صحیح ہے نا؟ جی رسول اللہ، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا، اللہ کی اللہ کا رسول، رسول۔ رسول۔ ہم، کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ پہلے محمد کا ترجمہ کریں گے، پھر کی لگائیں گے، ٹھیک ہے، پھر جی کتاب لگائیں گے، محمد کی کتاب۔ حاضہ، کیا یہ محمد کی کتاب ہے نا؟ کیا یہ محمد کی جی کتاب ہے؟ صحیح ہے۔ حاضہ کا جی مطلب دس، یہ ہے نا؟ جی کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یا یاسرو، یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے، یا اللہ نہیں کہتے بلانا۔ تم، یا اللہ کہتے ہیں نا؟ جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا اللہ کا؟ کبھی سوچا نہیں؟ یا کا مطلب عربی کا لفظ ہے نا، یا اللہ، اے اللہ، ہے جی نا؟ تو یا یاسرو جی کا مطلب ہے اے یاسر، ہے نا؟ جی ہاں، سمجھ آ گیا؟ یا اللہ کا مطلب اے اللہ، ہے نا؟ جی ہاں، اور یا یاسر کا مطلب اے یاسر۔ تو کیا، یہ سوال کر رہے ہیں نا، سعید سوال کر رہا ہے، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یہ پہلے لائیں گے، کیا کے بعد یہ لائیں گے۔ محمد کی کتاب ہے یا یاسرو اے یاسر، یاسرون، یاسرن لا ھذا کتاب حامد۔ نہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب یہ کتاب نہیں کہنا، یہ غلط ہو جائے گا، الٹا ترجمہ کرنا ہے۔ پہلے بولنا ہے حامد اور پھر بولنا ہے، دیکھیں یہاں اوپر میں نے لکھا تھا نا کتاب اللہ، تو اللہ کا ترجمہ پہلے لائیں گے، کتاب کا بعد میں لائیں گے، اللہ کی کتاب، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ پہلے حامد کا ترجمہ لانا ہے، پھر کی کا ترجمہ لانا ہے، پھر کتاب کا لانا ہے، الٹا ترجمہ کرنا ہے، صحیح ہے؟ جی نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ ابھی صرف پڑھنے پہ زور دو، لکھنے پہ نہیں دو، صحیح ہے؟ جی تو کس پہ لکھ رہی ہو؟ کاپی پہ لکھ رہی ہو نا، تو کاپی پہ تو تمہیں اردو کی بھی، اردو عربی بھی لکھنی پڑتی ہوگی پھر، ہے نا؟ جی تو پھر اس کے بعد یہ لکھنا پڑتا ہوگا۔ مین مین جو ہوتے ہیں نا پوائنٹ ہاں وہ لکھتی ہوں۔ ہاں، مین پوائنٹ۔ تو اب یہ مین پوائنٹ یہ نا، کتاب حامد، جی حامد کی کتاب، اور یا یاسر کا مطلب ہے اے یاسر۔
یا محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے محمد. یا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ. ہے نا؟ جی یا محمد کہتے ہیں نا، یا اللہ یا جی محمد. تو یا کا مطلب ہوتا ہے اے. اچھا، سعید. سعید أين کتاب محمد؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ أين کتاب محمد، کتاب کہاں ہے؟ الٹا ترجمہ کرو. محمد پہلے لاؤ، کتاب بعد میں. محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ایسے ترجمہ کرنا. محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے، یاسر کیا کہہ رہے؟ یاسر هو تحت المکتب هناك. ہم، هو وہ وہ تحت. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. پڑھا تھا نا ہم نے پہلے، پڑھا تھا. نیچے پڑھا تھا نا، نیچے. جی پڑھا تھا. ہاں. ہوا تحت المکتبی، وہ، اس کا بھی الٹا ترجمہ کریں گے، ٹیبل کے نیچے. ٹیبل کے نیچے. پہلے ٹیبل آئے گا، میز آئے گا، میز کے نیچے. تحت کا مطلب نیچے، الا کا مطلب اوپر. ہنا کا کیا ہے؟ وہاں. 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 ہنا کا مطلب ہوتا ہے یہاں. کا لگ جائے تو وہاں. صحیح ہے. تو یہ جی آپ کو یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، میننگ بھی یاد کرنے ہیں. ہوا وہ یعنی کیا چیز؟ کتاب. ٹھیک ہے. وہ یعنی جی کتاب. کہاں ہے؟ وہ وہ ٹیبل کے نیچے، میز کے نیچے ہے. وہ میز کے نیچے ہے، وہاں. وہاں. اور ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں. یہ دور ہے نا تھوڑی، تو وہاں بولیں گے. جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا دیر، اور ہیئر بولتے جی ہیں نا ہیئر. ہیئر اینڈ دیر. تو یہ ہیئر ہے اینڈ یہ دیر ہے. صحیح ہے. سعید. سعید أين دفتر عمار؟ دفتر عمار. عمار کی دفتر کیا عمار ہوتا ہے؟ دفتر کاپی. عمار کی کاپی. عمار عمار کی کی کاپی کاپی کہاں ہے؟ ہے. ہے کے لیے تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا ہے نا، وہ خود سے لگاتے ہیں. جی. اچھا، یاسر. یاسر ہوا. هو على هو على مكتب المدرس. یہاں پہ الل نہیں بولنا، الل نہیں بولنا یہاں پہ. نوٹ کرو، یہاں پہ الف لام نہیں لگانا. یہ جو مڈل والا ہے نا، ایک دو تین، یہ جو مڈل میں آ رہا ہے اس پہ اللہ نہیں لگے گا. اس الف لام نہیں لگے گا، اس پہ الف لام لگے گا. ٹھیک ہے. آخری والے پہ. جتنے بھی مڈل میں آئیں گے ان پر آپ کا الف لام نہیں آئے گا، وہ بغیر الف لام کے آئیں گے اور زیر کے ساتھ آئیں گے. اللہ مکتب المدرس، وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے نا؟ ٹیچر کے ٹیبل پر. صحیح ہے نا؟ جی. سعید. سعید قلم من هذا یا علی. 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 یو. یو. یا کے بعد بھی تنوین نہیں آتی، گر جاتی ہے. یا کے بعد یا لگ جائے تو یا امارو، یا علی یو. تو قلم من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کا قلم. من کا مطلب ہو ہوتا ہے نا، ہو ہوتا ہے نا من کا مطلب. جی تو مطلب ہاں، من کا مطلب. مطلب ہو ہوتا ہے. تو کون تو نہیں بولیں گے نا، ہو کا مطلب کون ہوتا ہے نا.
तो कौन तो नहीं बोलेंगे, जी किसका कलम बोलेंगे। हुज पेन, हुज पेन। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ। हु जी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ हुज पेन। ठीक है। जी हुज पेन, पेन, हुज पेन इज दिस। इज अपनी तरफ से लगाएंगे, और दिस। ठीक है। हुज पेन जी इज दिस। किसका कलम, किसका कलम, कौन का कलम तो नहीं बोलेंगे ना, किसका कलम है ये, या किसका कलम ये है ये, या अली यू ए अली। कलम मन, किसका कलम है ये। या ऐसे भी बोल सकती हूँ, कर सकती हो, ये कलम किसका है। लेकिन आप इसको ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो। यानी पहले कलम मन का कर लो, किसका कलम, हुज पेन, और फिर इज लगाओ, और फिर दिस का तर्जुमा करो। सही है। या लियो। जी। आगे वाला पढ़ो। अलीयुन हाजा कलामुल मुदर्रिसी। हम्म। अली युन क्या कह रहा है, हाजा कलमुल मुदर्रिसी। ये, इसका उल्टा तर्जुमा करें। ये उस्ताद उस्ताद का कलम है। उस्ताद का कलम है। देखिए, कभी का आ रहा है, कभी की आ रहा है, कभी के आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। जी मुदर्रिस का टेबल, अमार की नोटबुक, है ना। तो कभी का आ रहा है, कभी की आ रहा है। अच्छा जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाना जरूरी है, लगाना जरूरी है। टीचर का कलम, टीचर कलम नहीं बोलेंगे। सही है। जी हम्म, टीचर का कलम। इंग्लिश में आपने पढ़ा नहीं ये वाला, आपको पढ़ाया नहीं गया। वो होता है ना, हामिद्स पेन। ये पढ़ाया आपको कभी, हामिद्स पेन। नाम तो कोई भी लगा सकते हैं, मोहम्मद भी लगा सकते हैं ना। नहीं पढ़ाया। हामिद लगा के आगे एस लगाते हैं, हामिद्स बुक। क्या पढ़ाते हैं आपको, हामिद्स बुक। ये तो इधर जी तो ये बच्चे छोटे छोटे खुद ही जुमले बनाते जाते हैं, बोलते जाते हैं। हुज बुक इज दिस, दिस इज हामिद्स बुक। खुद ही बोलते जाते हैं, उर्दू आती ही नहीं उनको। सही है। तो जी ये जैसा माहौल होता है ना, वैसी पे पढ़ाई भी होती है ना, आप लोगों को बहुत ही। मैंने खुद इंग्लिश 6 क्लास में शुरू की थी, 5वीं तक तो नाम ही नहीं था इंग्लिश का। छठी क्लास में एबीसी शुरू की थी हम लोगों ने। और सोचो 10वीं तक हमने बहुत सारा पढ़ लिया, ग्रामर का, बहुत सारी इंग्लिश पढ़ ली। कराची थी ना, एक गांव है, गांव के स्कूल में जितना टीचरों को आता है, जो सिलेबस होता है वही फिर पढ़ा। तो हामिद्स बुक आप देखना, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। जी पढ़ते हैं अभी तो। हामिद्स पेन, है ना। हामिद का जी पेन, एस लगाते हैं, और जी फिर लगाते हैं। हम लगाते हैं। उस एस को क्या कहते हैं, कोई नाम नहीं बताती टीचर्स, क्या नाम है उस एस का। इज नहीं, इज नहीं होता। उसका जो एस लगाते हैं उसका मतलब का होता है, हामिद का पेन। तो वो जो एस लगाते हैं ना, वो यहाँ पे तो इज तो अपनी तरफ से लगाते हैं। यहाँ पे जो इज लगाते हैं ना, है वो अपनी तरफ से लगाते हैं, यहाँ कोई वर्ड नहीं है। ये टीचर का पेन है। पेन है। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन आएगी ना, रसूलुल्लाही किताबुल्लाही, 2 वर्ड आएंगे। पहले वाले पे पेश होगी, और दूसरे वाले के नीचे जेर होगी। रसूलुल्लाही कलमुल मुदरसी, तो फिर हम उस वक्त का की गे का तर्जुमा करेंगे। सही है।
जी। देखिए जब आपने ये पढ़ा ना दरसुल अव्वलु, तो इसमें तो आपने क्या किया, लेसन 5, है ना? इसमें तो कोई का की नहीं लगाया, नहीं लगाया ना? नहीं लगाया। नहीं लगाया। लेकिन जब इस तरह की शक्ल होगी ना, ये वाली, अब इसकी शक्ल देखो, इधर भी अलिफ लाम है, इधर भी अलिफ लाम है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब ये वाली होगी ना सिचुएशन, जिसमें आपका यहाँ पे अलिफ लाम नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। ये तो दो बैलेंस है ना, ये तो दोनों साइड अलिफ लाम आ रहे हैं, दोनों तरफ एक पेश आ रही है। तो वो जो है ना, उसमें काकी का तर्जुमा नहीं आता है। इस वाले में रसूलुल्लाह देखो, पहले वाले पे एक पेश आ रही है, दूसरे के नीचे जेर आ रही है, एक पेश आ रही है, दूसरे के नीचे जेर आ रही है ना? जी। ये वाली शक्ल पहचानो, इसकी पिक्चर अपनी आंखों में बसाओ। रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, किताबु मोहम्मद, मोहम्मद की किताब। फिर आपने तर्जुमा का की का करना है, किताबु हामिदिन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हामिद्स, अल्लाह's बुक, किताबुल्लाही, अल्लाह's बुक। अल्लाह लिखेंगे, अल्लाह ताला का नाम, और फिर आगे एस लगाएंगे और उसके ऊपर एक कॉमा भी डालेंगे, अल्लाह's बुक। ठीक है, जी। अल्लाह's बुक, अल्लाह की किताब। रसूलुल्लाही, अल्लाह's, अल्लाह's मैसेंजर। रसूल कौन होता है? रसूल मैसेंजर। मैसेंजर। मैसेंजर होता है, मैसेंजर होता है पैगाम लाने वाला। तो ये बात है, अभी यहाँ से पढ़े। सईदुन हम्म। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी। हम्म। अ, वेयर। अच्छा आप उर्दू में तर्जुमा करो, हकीबतुल मुदर्रिसी का तर्जुमा पहले करो। इधर करने को। उस्ताद का पर्स कहाँ है? पर्स नहीं, बैग। ये बैग। पर्स, इसको पर्स कहते हैं, बैग होता है, मर्दों का बैग। पर्स नहीं होता। पर्स तो कोई लफ्ज ही नहीं होता, पता नहीं पर्स क्यों बोलते हैं पाकिस्तान में। बैग ही हैंड बैग होता है ना, चाहे औरतों का हो मर्दों का हो, बैग ही होता है वो, औरतों का स्कूल बैग होता है ना? जी। बैग होते हैं। हकीबा बैग को कहते हैं। टीचर्स का बैग कहाँ है? पर्स तो कोई लफ्ज नहीं होता, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, टीचर का बैग कहाँ है? अच्छा, अली युन। अभी अली अली युन क्यों यूं। आया? क्योंकि पीछे या नहीं आया। सईदुन क्यों आया? क्योंकि पीछे या नहीं आया। अगर पीछे या लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक पेश गिर जाएगी, या सईदू हो जाएगा, या अली यू हो जाएगा। पुकारेंगे ना जब किसी को, है ना, तो फिर आपका जी। एक पेश हो जाता है या लगाने से। या से ही पुकारते हैं ना, या वलदू। जी। वलदुन होता है लड़का, बॉय, और या लगाते हैं तो या वलदू हो जाता है, सही है ना? जी। वलदुन से क्या हो जाता है, या वलदू हो जाता है। तो अली युन ही या पढ़े। अली ही- अली यूं ही या तख्त अल मकतबी। वो क्या चीज है? वो अम, मोहन्नस है बैग। ना, बैग। जी। ठीक है, तो वो, जी। हाँ, तख्त। टे- हाँ, तहतल मकतबी, उल्टा तर्जुमा करोगी ना। वो मेज के नीचे है। हाँ, मेज के नीचे, के लगाया कि नहीं लगाया? तुमने लगाया है ना। तो मेज लगाया। के नीचे, अब यहाँ पे का तो नहीं लग सकता ना, की तो नहीं लग सकता ना। मेज नहीं। के नीचे तो कभी के आएगा, कभी का आएगा, कभी की आएगा। पहले इसका तर्जुमा करेंगे मेज, और फिर इसका तर्जुमा करेंगे नीचे। सही है। नीचे। जी। हम्म।
अच्छा जी, अब आ जाए तमारीन पे। पढ़े। अजिब अनिल अस असइलाती आतियाती। ला क्यों बोल रही हो? लंबा क्यों कर रही हो? ला तो ये होता है ना, ये ला होता है। ये तो सिर्फ लाम है, ऊपर जबर है। अजिब, अजिब, जवाब दो। अनिल, अस, अस, ई, अस, ई, ला, ला, लती। ला नहीं बोलना, लंबा नहीं करना, क्योंकि अलिफ नहीं डला हुआ। अगर अलिफ डला होता तो ये ला इस तरह होता, लंबा होता। जैसे कलमे में ला होता है ना, तो आपने इसको लंबा नहीं करना। अस इलती, छोटा करना जितना छोटा कर सकते। अस इला, अस इला ती। मैंने ला बोला है? नहीं। हाँ, ला, ला नहीं बोलना, अलिफ नहीं लगाना। अस, अस, ई, ला, ती, ला, ला, ती। अब इसको मिलाना भी है, तिल, है ना? जी। इसके साथ मिलाएंगे तिल। आ, ती, आती उर्दू में भी बोलते हैं, आती, मैं आती हूँ, है ना? आती, जी। आती, याती। ताकि नीचे एक ही जेर है, आती, या, यति, याती। यति। ये या अलग है, इस पे जबर है, और ती अलग है। आती यति, आती यति। इसमें भी या को लंबा नहीं करना। यही तो गलती हम कुरान में करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो सबसे बड़ी गलती यही होती है, छोटे को लंबा कर देते हैं, लंबे को छोटा कर देते हैं। अब देखें, कलमा पढ़ें जरा, आप कैसे पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। इसके ऊपर क्या आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पे क्या आता है? कभी अल्लाह पे गौर, ही पेश। पेश आती, पेश आती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो नहीं पढ़ना, हो नहीं पढ़ना। मैंने कल बताया था, ओ का ओ नहीं होता अरबी में। क्या पढ़ना है? एक तो ला को लंबा करना है। हम जल्दी से ला पढ़ देते हैं, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। ला का मतलब होता है नहीं। ला का मतलब होता है जो इधर मैं ला लिखती रहती हूँ ना बार बार, नाम और ला, जी। ये वो वाला ला है। इसको आपने लंबा करना है, ला, बल्कि इसके ऊपर मद भी आती है, इसके ऊपर मद भी आती है, ला इलाहा इल्लल्लाहु। हम लोग तस्बीह ले लेते हैं और ला इला, ला इला, ला इला, ला इला, ला इला पढ़ते रहते हैं। वो ला, हम सिर्फ ये वाला ला पढ़ते हैं, ये वाला लाम पे जबर, बस ये वाला पढ़ते हैं। ये अलिफ लगाते ही नहीं आगे। तो ये करेक्शन करना है, तुमने ये काम करना है सबसे। अगर आप ये वाला लाम लगा दोगी ना, तो उससे मीनिंग बिल्कुल उलट हो जाएगा। ला का मतलब होता है देर इज नो गॉड, देर इज नो अल्लाह, यानी यानी कोई भी माबूद नहीं है। और जब ये वाला नाम पढ़ते हैं, लंबा नहीं करते, तो उसका मतलब है यकीनन कोई और इलाह है, कोई और भी माबूद है सिवाय अल्लाह के। समझ आइए? इल्ला का मतलब होता है जी। सिवाय, है ना? जी। सिवाय अल्लाह के। तो जब आप इसको छोटा करते हैं तो उसका मतलब होता है यकीनन, बेशक, यानी इसमें कोई शक ही नहीं कि कोई और भी अल्लाह है सिवाय अल्लाह के। उलट हो गया ना मतलब। जी। और जब ला कहते हैं, तो ला का मतलब है कोई भी और इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। और जब ये वाला ला पढ़ते हैं छोटा करके, तो उसका मतलब होता है कि यकीनन कोई खुदा और भी है सिवाय अल्लाह के, यकीनन, इंडीड।
کتنا فرق پڑا. اب کتنے لوگ اس کو لا ہی پڑھتے ہیں، لا نہیں پڑھتے اس کو، اوپر مد بھی ڈلی ہوئی ہے، اور لمبا کرنا چاہیے نا. جی لا الہ یہ زبر ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ جی اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد الرسول پورا ایسے کیسے اللہ تعالی نے بنایا کلمہ. تو لا پڑھنا ہے، لا کی تلوار چلانی ہے، صرف لا نہیں پڑھنا کلمے میں. کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ترجمے کا یہ مطلب ہے. جب یہ والا لا پڑھتے ہو تو الٹا ترجمہ کر دیتے ہو کہ ہے خدا کوئی سوائے اللہ کے، تو کفر ہو گیا نا، کہ نہیں ہوا. تو اس لیے جی میں کہتی ہوں یہ والی غلطی سب سے بڑی ہے. اور آپ اس جو ہے نا، لا کو لا ہی پڑھنا ہے اور لا کو لا ہی پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا ورنہ اس کا مطلب ہی نو ہو جائے گا. جیسے یہ والا لا آپ لمبا کر دیں، یہ والا اس طرح پڑھ دیں تو اس کا مطلب تو نو ہو جائے گا نا. تو اس کو چھوٹا ہی پڑھنا ہے. یا نہیں پڑھنا، یا پڑھنا ہے، یا یتی یتی. یہ لا دیکھو، یہ لا مت ڈلی ہے، اس کو لمبا پڑھنا ہے. یہ لا کے اوپر مت نہیں ہے، لا تو جو ہے وہ اس پہ تو سکون ہے. یہ الف پہ مت ڈلی ہوئی ہے. آتی آتی یتی آتی یتی. اور یہ کیا ہے؟ اسئلتی اسئلتی. لا نہیں کرنا ہے اس کو. تو نیکسٹ ٹائم خیال سے پڑھنے میں 10 منٹ لگائیں اس کے اوپر. آگے پڑھے. آنسر دا فالوئنگ کس کوشچن. این کتاب محمد. ہوں لا، اب اس کا آنسر ہوگا ہوں لا ہاذا کتاب حامد. وہ سوال کر رہے ہیں محمد کی کتاب کدھر ہے، کہاں ہے، اور آپ کیا جواب دے رہی ہو؟ محمد یہ پوچھ رہے ہیں، سوال ہے کہ کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے نا. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ کتاب محمد کی جگہ آپ ہوا لگائیں گے. ہوا ہوا تحت المکتبی ہناکا. نہیں، وہ تو بیگ تھا. ہوا تحت نہیں، المکتبی، تحت المکتبی نیچے تھی کتاب، وہ تو بیگ ہے. اور ہاں یہاں کتاب بھی نیچے ہی ہے. تو ہوا تحت المکتبی، بس اتنا ہی کہہ دیں. ہناکا. ہونا کا کہہ دیں، ٹھیک ہے. دیر. ہونا کا نہیں بھی کہیں گے تو کوئی بات. تو کیا کہیں گے؟ ہوا. اس پورے کی جگہ تحت. آپ نے ہوا بولا ہے، ٹھیک ہے. اور جی یہ تو آتا ہی نہیں ہے جواب میں. کوشچن والا ورڈ آتا ہے کبھی، جواب میں نہیں آتا. کوشچن والا ورڈ کبھی نہیں آتا جواب کے اندر. من کبھی جواب میں نہیں آئے گا، ماں نہیں آئے گا، آئینہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، ہے نا. تو اس پوری کی جگہ جی آپ نے ہوا بول دیا. ہوا تحت المکتبی. مکتبی، مکتب. اصل میں تو مکتبو ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں پہ جی زیر آتی ہے. یہ زیر پتہ ہے، یہ زیر جو ہے نا اس کا ترجمہ کا کی آتا ہے. اگر یہ زیر نہیں لگاؤ گی نا تو پھر کا کی کا ترجمہ نہیں آئے گا. صحیح ہے. این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ عمار کی کتاب کا ہے. ہوا علی المکتبی، نہیں، ہوا علی المکتب المدرسی. ہم، مکتب ہوا. اس پورے کی جگہ آپ ہوا لائیں گے نا، پورے کی جگہ ہے نا. ہوا اللہ مکتب المدرسی. اللہ مکتب، اس کے اوپر الف لام نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. اور اس کے اللہ کی وجہ سے اس کے نیچے زیر بھی لانی ہے.
मकता अला मकतबिल मुदरिसी, मुदरिसी। सही है। जी। अच्छा, ऐन हकीबतुल मुदरिसी। उधर से ही आता तल मकतबी। बस ही जाता तल मकतब। आपने लेसन पहले पढ़ा है? पढ़ के आई हो? जी। जवाब रेडी करके रखे हो मैं, है ना? चलो अच्छी बात है, मैंने आपको बोला था पहले पढ़ के आया करो। अच्छा, आगे पढ़ना है अभी हमने। ये पढ़ सकती है? जी। पढ़ू। ये वाला मुश्किल, मैं पढ़ के बताती हूँ। ये असल में अदिफ, अदिफ है जी। ये, है ना? जी। अब जब दो साकिन आते हैं तो मिलाना है ना दोनों लफ्ज, इसको भी मिलाना है, इसके साथ मिलाना है, सही है। ये वाला जो हरफ है इसको अगले हरफ से मिलाना है ना। तो फिर हम जब दो साकिन आ जाते हैं तो कैसे मिलाते हैं? साकिन से तो आगे नहीं मिला सकते ना। तो फिर हम ये पहला वाला साकिन होता है इसके नीचे जेड दे देते हैं। ठीक है। पहला वाला जो जी। साकिन हरफ होता है उसके नीचे जेड देते हैं और आगे मिला लेते हैं, ये रूल है। तो ये क्या बन गया? अदिफिल कलिमा, कलिमा तल उला। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लें, अदिफ अल कलिमतिल कलिमतल उला। ये पेश जो है यानी यहाँ पे आएगी उला इला इलसानिया। ठीक है। यानी दो कलमे है ना ये, पहले को दूसरे के साथ मिलाना है। और कैसे मिलाना है? किताब उन पे तनवीन है, उस पे दो पेश को गिरा के एक पेश कर देंगे, और मोहम्मद उन को मोहम्मद दिन कर देंगे। मिल गए ना आपस में, किताबु मोहम्मद दिन। पहले दोनों अलग अलग लफ्ज थे, ये भी अलग था, ये भी अलग था। दोनों को मिला के बनाना है, एक करना है मोहम्मद की किताब। इसका मीनिंग मोहम्मद की किताब नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो जी। जब हमने कहना है मोहम्मद की किताब तो इन दोनों को मिलाएंगे ना, तब मोहम्मद की किताब बनेगा। तो फिर हम किताब बुन के ऊपर से तनवीन गिरा के एक पेश लगाएंगे, और मोहम्मद दुन की दो पेश को दो जेर में चेंज करें। बिल्कुल आसान सी बात है। ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे तो मोहम्मद की किताब का तर्जुमा बनेगा। किसी और तरह मिलाओगी तो नहीं होगा। इसी तरह मिलाना है, इधर पेश लानी है, इधर दो जेर लानी है। अब इन दोनों को मिलाओ, क्या बनेगा? कालामन हामिदुन। कालामू और हामिदुन को कर देंगे हामिदन। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? अ, हामिद का कलम है। अब बीच में ये कॉमा नहीं लगाना, दोनों को मिलाना है। कला मुंह, देखिए कोई कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा है, यहाँ नहीं है। कलम हामिद दिन, हामिद का कलम, कलम। हामिद दिन। हम से है ना, हमद, हम से क्या बनता है? हामिद बनता है। हामिद। एक ही रूट लेटर होता है, रूट लेटर भी बताऊंगे क्या होते हैं। हा मीम दाल रूट वर्ड है, इससे कितने लफ्ज बन सकते हैं। हामिद भी बनता है, महमूद नाम होता है वो भी बनता है, बनता है ना। जी। महमूद भी इसी से बनता है, हम से ही बनता है। और मोहम्मद भी इसी से बनता है। ये मोहम्मद में भी देखो ना, हा मीम दाल आ रहा है ना? तो कितने जी। लफ्ज बन गए? और भी बन सकते हैं, बहुत ज्यादा बन सकते हैं, 12-13 लफ्ज बन सकते हैं। ठीक है, कम से कम चार तो आपको बनाने आने चाहिए। जैसे आपका काफ ताब बा है, तो एक तो किताब बन गया, एक मकतब बन गया, और क्या क्या बन सकता है? किताब, मकतब, मकतब देखें काफ ताब बा से ही बना हुआ है, किताब भी काफ ताब बा से ही बनी हुई।
मकतब बतुन भी बनता है, लाइब्रेरी, है ना। मकबत, मकबत क्या होता है, मकतबतुन, वो लाइब्रेरी को कहते हैं। अभी आप पढ़ोगी आगे, मकतबतुन भी आ जाएगा। अच्छा, बैतुन, बैत, इसको कैसे पढ़ोगी? पढ़ती जाओ अभी। ब- बैतुन अब्बासुन। बैतुन नहीं, अब्बासुन। जोड़ के पढ़ो, जोड़ के पढ़ो। मैं आगे। बैतु अब्बासिन। इसको जोड़ के पढ़ो। बैत गुरफतु अलीजिन। हम्म। दफ्तरु सईदिन। हम्म। मन मंदिलु यासिरिन। मन कहाँ है? मिंदिल। दी, दी, सिर्फ दाल के नीचे जेर नहीं पड़नी, आगे या भी है। मिन, मिन दीलुन, मिंदिलन। सिर्फ दाल के नीचे जेर नहीं, आगे या भी है। दी, मिंदी नहीं पढ़ना, मिंदीलुन। कमीसुन, मीम के आगे, ये जेर के आगे या भी है। कमीसुन, शरीरुन, री, री, शरीरुन। जहां पे दो हरकत पढ़ना होता है वहां दो हरकत पढ़ते हैं, है ना। जैसे अलिफ के जी। ऊपर मद आ जाती है, दो हरकत पढ़ते हैं ना। आ, आ, और एक जबर हो तो आ। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, हो गया सरीरू खालिदिन, कमीसु अम्मारिन, मिंदीलू, मिंदीलू यासिरिन। अब तर्जुमा कर लें यहां से। हामिद का कलम तो हो गया था, इसका क्या तर्जुमा होगा? बैतू अब्बासिन। अब्बास का घर है। है नहीं लगाना, अब्बास का घर। है नहीं लगाना। बैतू अब्बासिन, अब्बास का घर, अब्बास। का घर, है नहीं लगाना। सही है ना? अच्छा, जी। अब बताएं। अली का, गुरफतन। हाँ, गुरफा क्या होता है? अली का कमरा, नहीं आता। कमरा, अली कमर का होती है ना, कमरा। कमर, कमर, कमरा, जी। है ना। जी। ठीक है। दफ्तरू सईदिन, सईद, सईद की नोटबुक। कॉपी। मिंदीलु यासिरिन, यासिर का यासिर का रुमाल। रुमाल। कमीसु अम्मारिन, अम्मार की कमीज। इसको आपने बार बार पढ़ना है, कमीसु अम्मारिन। इतना इसको पढ़ना है कि आपको याद हो जाए, कमीसु अम्मारिन, यानी इधर पेश लगानी है एक, और इधर दो जेर लगाने, कमीसु अम्मारिन। तब जाके काकी का तर्जुमा अम्मार की कमीज बनेगा। सरीरू खालिदिन, आप ये नहीं कह सकती सरीरू खालिदुन, ये नहीं कह सकती, गलत हो जाएगा। इधर एक पेश लगानी है, इधर दो जेर, सरीरू खालिदिन। इसको लिखना भी है और खालिद का बोलना। बेड। खालिद, हाँ, तो भूल जाती है ना चीजें, तो लिखना भी है। अच्छा, अब यहाँ पे मक्तबुन है, ठीक है, और यहाँ पे अल मुदर्रिसु है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मक्तबुल मुदर्रिसी। अब मुदर्रिसिन नहीं आया, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना, तो अभी जी। तनवीन नहीं आ सकती। और यहाँ पर दो पेश थे तो एक पेश हो गया। यहाँ पे दो जेर नहीं लगाने, बस बाकी वही है जो यहाँ पे किया है। तो मीनिंग क्या होगा? टीचर की, टीचर का मेज, टीचर का टेबल। ठीक। सही है। जी। टीचर का टेबल। टेबल।
मिफ्ताहुल बैती, दुकान नुत ताजरी। एक पेश में कन्वर्ट करना है। सही है। जी। पहले वाले पे दो पेश नहीं लगानी, ना अलिफ लाम लगाना है। अलिफ लाम भी किसी पे नहीं लगा हुआ, और तनवीन भी किसी पे नहीं लगी हुई। तो दुकान नुत ताजे री हो जाएगा। रिन नहीं होगा, री होगा, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। बैतुल मुहंदे मुहंदिसु। सू मुहंदिसु। सी। अच्छा, इसको पढ़े। किसको? आसिमन। आसिमु। इसम। पढ़ो। आसिम कहाँ से है बताओ मुझे। कहाँ से आसिम है ये? इसम। इस इस्म इस्मुल। इसमुल वालादी। लंबा नहीं करना, वाला दी नहीं। वाला दी बाप बन जाता है। वाला। वाला वाला दी, वाला दी बोलोगी, वाला छोटा करके बोलोगी तो वो बेटा होगा, लड़का होगा, वाला दी। और वाला दी बोल दोगी तो वो बाप हो जाएगा। वालद क्या होता है? वालिद क्या होता है? बाप होता है ना। जी। उसके वालिद का क्या नाम है? तो वालिद होता है बाप। और इस, जब अलिफ हटा देते हैं, वाव लाम दाल बोलते हैं, तो वो होता है बेटा, लड़का। अलिफ लगा दे। आपने वलादू पढ़ा है, तो वलादू नहीं पढ़ना। वलद 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 वालादू नहीं वाला। पढ़ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है। कुरान में गलतियां करोगी ना तो फिर तो बहुत ही गुनाह होता है। इस्मुल वला वला वलदी वलदी। वालदी बड़े पढ़ोगी तो बाप हो जाएगा। सही है। जी। तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखे, किताबुल्लाही। सही है। जी। किताबुल्लाही। और बिन तबीबी, एक पेश। बिन तबीबी। यहाँ इसको पढ़ो। मिफ्ताहु। मिफ्ताहु अस्सय्यारतु रति। इसको इसके साथ मिलाना है ना। दोनों को ये अलग अलग लिखे हैं, बीच में कॉमा डाला हुआ है। आपने इन दोनों को यहाँ मिला के लिखना है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने कॉपी में करनी है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों वर्ड ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाले आगे मिला के लिखने की जरूरत है। ये देखो, इसमें कोई कॉमा नहीं है। मकतबुल मुदर्रिसी, मकतबुल मुदर्रिसी। यहाँ कॉमा है, ये अलग है, ये अलग है। अब इसको जोड़ती जाओ और मीनिंग करती जाओ। मिफ्ताही अलबैतु। जवा। जोड़ जोड़ के बताओ मुझे। जोड़ो। मिफ्ताहु। मिफ्ताहुल अलबैती। जोड़ भी दिया और फिर भी अल बैती बोल रहे हो क्या? जब जोड़ दिया तो फिर अल क्यों बोला है आपने? मिफ्ताहुल, अल बोलने की जरूरत नहीं है अभी। मिफ्ताहुल बैती। ठीक है। जी। समझ आ गई। जी। अब इसको जोड़ो। मीनिंग क्या होगा मिफ्ताहुल बैती? घर की चाबी। घर की चाबी। इसको इसको मिलाओ। दुकान। 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 दुकान ताजिरु। ताजिरू क्यों? बुरा नहीं लग रहा आपको ताजिरू पढ़ते हुए?
दुकान ताजिरी। ताजिरी। यहां पर जेर लगाई है ना आपने, तो यहां पे जेर नहीं लगानी। दोबारा से पढ़े। दुकान ताजिरी। ताजरी, ताजिर की दुकान। ताजिर इसको की। एक पेश बनाओ और इसको आगे मिलाओ, नून पेश ता, नुत ताजिरी, ताजिरी। अगला क्या है? बैतुल मुहंदिसी। हम्म, इस्मुल। इस इस्मुल वालदी। ये इस्म है। इस- इस्म नाम को बोलते हैं ना। जी। बिस्मिल्लाह में भी आता है ना, आता है कि नहीं आता? इस्म आता है ना आता है। बिस्मिल्लाह में। ठीक है। जब पीछे बे लगाते हैं तो फिर ये बिस, ये अलिफ गिर जाता है, बिस्मिल्लाह हो जाता है, सीन के साथ मिला देते हैं। अच्छा, बहरहाल, ये वाला पढ़ो, किताबुल्लाही। किताबुल्लाही। अ, हम्म, किताबुल्लाही। आगे नीचे वाला पढ़ो। तर्जुमा करो। अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। तर्जुमा भी करना होता है ना, लड़के का नाम। नाम। इस्मुल वलदी, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। बैतुल्लाही, बैत। ऐसे तुम बहुत सारे लफ्ज जोड़ के बोल सकती हो। ये जो नाम होता है ना, अब्दुल्ला, ये भी जी। अब्दुल्ला ही होता है। अब्दुल्ला ही, अल्लाह का बंदा। आपका मतलब बंदा, गुलाम। अल्लाह का अब्दुल्ला ही होता है, लेकिन हम उसको फिर अब्दुल्ला बुलाते हैं, है ना। जी। उर्दू में तो नहीं ये लगाते हैं जेर जबर पेश, लेकिन अब्दुल्ला तो बोलते हैं ना, पेश तो लगाते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ही होता है, अल्लाह का बंदा। का की का तर्जुमा आएगा। और कोई लफ्ज बनाओ, अब्दुर रहमान। आता है। है ना। जी। अब ये किसका नाम है? अब्दुर रहमान, अब्दुल रहमान का रहमान। बंदा। सही है ना। अब्दुर रहमानी होगा। सही है। नून के नीचे जी। जेर आएगी, जैसियन। और बहुत से नाम होते हैं ना। अब्दुल बासित आता है। अब्दुल बासित भी आता है। बासित होता है फैलाने वाला। अल्लाह ताला का नाम है ना बासित, यानी अल्लाह के हाथ फैले हुए हैं, खुले हुए हैं। तो अल्लाह का नाम रखने से पहले हमेशा ऐसे ही अल्लाह का नाम नहीं रख देते बच्चे का, उससे पहले अब्द लगाते हैं। अब्द लगाते हैं। अब्दुल कादिर, कादिर भी अल्लाह का नाम है, तो वो कादिर के नीचे भी जेर आएगी। ठीक है। कादिर ही होता है, लेकिन जी। हम उसको कादिर बोल देते हैं। बैतुल्लाही, हम बैतुल्ला बोल देते हैं। रसूलुल्लाह ही हम रसूलुल्लाह बोल देते हैं। उर्दू में तो नहीं लगाते ना, इराब नहीं लगाते, ये लास्ट लेटर की हरकत नहीं, साकिन का। है ना। जी। बिन्तु तबीबी, डॉक्टर, डॉक्टर की बेटी। डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताहुस सय्यारतु, में गाड़ी। गाड़ी की चाबी। तो क्यों नहीं सैयारा का मीनिंग आ रहा है, ये सैयारा है ना। अरबी में सैयारा गाड़ी को बोलते हैं। सैयारतुल मुदीरी, क्या मतलब होगा सैयारतुल मुदीरी?
सैयारत मुदीरी, प्रिंसिपल की गाड़ी। बिनतुल मुदर्रिसी। डॉक्टर की बेटी। डॉक्टर, मुदर्रिस डॉक्टर होता है। टी, टी, उस्ताद की बेटी। हाँ, टीचर की बेटी। बिनतुल मुदीरी, मुदीर प्रिंसिपल की बेटी। बिनतुल मुदर्रिसी, बिनतुल मुदीरी। बिनतुल फलाही, कितने लफ्ज बना सकती हो? बिनतुल फलाही। फलाह कौन होता है अभी? फलाही, किसान। किसान। किसान को बोलते हैं ना, पढ़ के आए हैं ना, ऊपर पीछे से पढ़ाया करो, किसी ना किसी को पकड़ के ना पढ़ाया करो। अपने अंदर ना एक जैसे ये देखो गेम खेलते हैं ना जो, तो जी कितना उनको शौक होता है। वो हर वक्त वही करते रहते हैं। जैसे वीडियो गेम्स अभी आ गई ना सेल फोन में, वो तो खेलनी नहीं चाहिए, फजूल काम है वो तो। बच्चों के हाथ में दे दो तो बस वो गेम्स गेम गेम गेम, है ना। जी आपस में भी मुकाबला शुरू कर देते। तो जिस चीज का शौक होता है ना, उसका फिर जुनून होना चाहिए। उसका उसका बस पागलपन की तरह उसको फिर पढ़ो। रात ना देखो, दिन ना देखो, सुबह ना देखो, शाम ना देखो, बस जब है कि उसको करो। किसी को पढ़ाने बिठा जाओ, सेल फोन खोलो, उसके ऊपर उनको पढ़ाना शुरू कर दो। किसी को भी पढ़ाना शुरू कर दो। तो अब तो बड़े बड़े सेल फोन आ गए ना, आराम से साफ नजर आता है। तो शौक होना चाहिए, शौक भी बहुत ज्यादा शौक। किसी बच्चे को किसी गेम का शौक हो तो वो हर वक्त वो उसके पीछे ही लगा रहता है। मैं रन बनाऊं, है ना, ये जी करूं, वो करूं, विकेट लूं। जुनून होता है, जुनून। तो इश्क करना पड़ता है। जो भी काम करने हैं उसके साथ पूरी ईमानदारी से। यहाँ पर कलमु हामिद दिन, ये मैंने मिसाल दे दी है, ऊपर भी मिसाल दी हुई थी मैंने, यहाँ भी कलमु हामिद दिन। बेतु अब्बासिन गुरफतु अलीन दफ्तर सईदिन। दो पेश आ रहे थे तो दो जेर आएंगे। यहाँ पर एक पे अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रहा था तो एक जेर आया, है ना। दो चीजों को आपस में जी मिलाना है, एक है मुदीर और एक है गाड़ी। मुदीर की गाड़ी, सैयारतुल मुदीरी, अल्लाह की किताब। दो, एक दो लफ्ज है, एक किताब है एक अल्लाह है। किताबुल्लाही कैसे मिलाएंगे? पहले वाले पे एक पेश लगाएंगे, दूसरे वाले के नीचे। अगर वो दो पेश लगे हैं तो दो जेर लगाएंगे, अगर एक ही पेश लगा हुआ है तो एक जेर लगाएंगे। तो इस सबक को याद, अब इसको थोड़ा सा तुम कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बाबुल बाबुल मदरसती। ती, ये क्या होगा? इमा इमारी इमार राजुली। हिमार इमार के ऊपर क्या राजुली लगाओगी इसको मिलाने के लिए? पेश। हाँ तो लगाए ना, हिमारी क्यों कर रही है? हिमा, हिमारुर रजुली, ठीक है। राजुली। अब जी ये क्या होगा? बई तो हामिदिन। दिन, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है। जी असल में हामिद दुन था और दिन हो गया। सैयारा पढ़े। सैयारा तो तुल पेश आएगी ऊपर। तुल हम्म, मुदीरी दीदी, ये वाला क्या होगा? मिन दीलू अम्मारिन। हम्म, ये क्या है? इसमो इसमुत हम्म, इसमुत ताली।
मिल तालिबु। दोनों को मिला के तालिब। पढ़ना है, ठीक है ना, मिला के पढ़ना है, ये वाला इसम इसके साथ मिला के पढ़ना है। इसमुत तालिबी, इसमें तालिब। बैतुल्लाही। बैतुल्लाही, आगे पढ़े। फिल किताब बिल्लाही। फिल किधर है, अलिफ लाम लगा हुआ है यहाँ पे, फिल। फी किताबी। फी किताब किताब। बिल्लाही। अब फी की वजह से यहाँ पे जेर आ गई है, ठीक है, वैसे अगर फी ना होता तो ये क्या होता, अगर फी ना होता तो क्या होता, किताबुल्लाही। किताबुल्लाह ही होता, किताब। है ना। जब जी। फी लगा तो फी ने इसको जेर दे दी, है ना, तो अब पेश नहीं आएगी, जी। अब जेर आएगी, अल्लाह ही होगा। मिन, मिन के बाद बैतु। मिन बई, बैतुल मुदर्रिस। मिन की वजह से जेर नहीं लगाओगी, बै, मिन की वजह से जेर नहीं लगाओगी यहाँ। मिन बैतु कैसे होगा, मिन बैती होता है ना। मिन बैतुल मुदर्रिस। दोबारा पढ़े। मिन बैतुल मुदर्रिसी। बैतिल मुदरिस, अब तुल मुदरिस ही नहीं होगा, अगर मिन नहीं होगा ना फिर बैतुल मुदरिस होगा, है ना। अगर मिन आ गया तो फिर मिन बैतिल जी। मुदरिस ही होगा। तो ये आपने चीजें लिखनी है, लिखोगी तो फिर तुम्हें याद आएगा, अच्छा ये तो यहाँ पे जेर लगानी क्योंकि मिन आया है। अगर मिन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे अभी मिन नहीं आया, कोई भी हरफ नहीं आया, तो आपने पेश लगानी है। कब कोई कोई हरफ आ जाएगा तो फिर जेर लगानी है। अल मुदरिसी, ये तो आएगा ही जेर, इसको तो आना ही जेर है। अल्लाह, अला मकतबी। हाँ, मकतबिल मुदीरी। इनको सबको मिला के पढ़ना है। तीन वर्ड है, पहले हमने दो दो मिलाए, अब तीन तीन मिला रहे हैं। अला मकतबिल मुदीरी, जेर क्यों आई है, इसकी वजह से, अगर ये ना होता पीछे तो ये क्या होता, मकतबुल मुदीरी होता। सही है। जी। तो ये इस तरह करना है। फिर यहां से हम इकरा वाला पढ़ेंगे बाद में। सही है। जी। और आज हमारा ये इम्पोर्टेंट लेसन लेसन था, बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे थोड़ी तवज्जो दो कि हम का तर्जुमा कुरान में कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास यहाँ कुरान खुला हुआ है, देखती हूँ, ये है कुरान। शेयर, कुरान में कैसे जुमले आते हैं मिला के। असल चीज तो कुछ हमने, किताब ये है ना, हमारा कुरान है ना, इसको हमने पढ़ना है। देखिए, अब ये बी है ना, तो बी हरफ है ना, जी। तो बी की वजह से यहाँ पे जेर आ गई है। अगर बी ना होता तो ये इस्मुल्ला ही हमने अभी पढ़ा था ना, इस्मुल्ला ही पढ़ा था ना, इस्मु तालेबी, कुछ भी लगा लें आगे, जी। है ना, इस्मुल्ला ही जी। लगा लें, इस्मु तालेबी लगा लें, इस्मु ताजिरी लगा लें, कुछ भी लगा लें। लेकिन जब बी लग गया पीछे तो फिर इस्म के ऊपर पेश नहीं आएगी, जेर आएगी। कैसा लग रहा है पढ़ के। बहुत बी का, अच्छा। बी का क्या मतलब है, बी का शुरू। क्या, बी का क्या मतलब होता है। बी का शुरू। नहीं, ये साथ। साथ, साथ नाम अल्लाह के, अल्लाह के नाम, इस्मुल्लाही, अल्लाह के, काकी का तर्जुमा आ गया ना, जी। अल्लाह के नाम के साथ। इस बी की वजह से यहाँ जेर आई, अगर ये बी ना होता तो इस्मुल्लाह होता, अल्लाह का नाम, लेकिन अल्लाह ने कहना था अल्लाह के नाम के साथ, तो बी लगाया है। तर्जुमा याद करना शुरू कर दो, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है।
ٹھیک ہے؟ جو کا जी जो का लफ्ज बीच में डालेंगे, ठीक है? जो रहमान, जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो ये, अब ये जो अपनी तरफ से मैंने लफ्ज डाले हैं ना, ये इनकी शिद्दत की वजह से डाले हैं, रहमान, रहीम। जो इन लफ्जों की बनावट है ना, उसकी वजह से मैंने डाला है बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला। तो बहरहाल, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा याद हो गया? जी अच्छा, अल्हम्दु लिल्लाही, हे नहीं पढ़ेंगे, ही, हा, हाजिर ही। तो जी ये एक हा ये वाली होती, ये वाली याद नहीं पढ़नी है, आपकी हा पेट से निकलनी चाहिए। तो ये वाली तो अलग से निकलती है ना, ये वाली पेट से निकलती है जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आपका जो है लिल्लाही, ये एक लफ्ज है कि दो लफ्ज है? लिल्लाह, दो लफ्ज हैं। अगर ये एक लफ्ज होता तो क्या शक्ल होती? अगर एक लफ्ज होता तो अल्हम्द नहीं। ये अगर एक ही लफ्ज होता तो अल्लाह होता ना। जी अल्लाह होता ना। अब वो एक लफ्ज और ली भी मिल गया उसके साथ, तो ली ने क्या किया, वो अलिफ को खा लिया, उसके साथ लिल्लाही बल्कि ये अलिफ इधर आ गया ऊपर, ये देख रही हो, यहाँ पर आ जी गया। तो ये लाम यहाँ पे आ गया और ये अलिफ ऊपर चला गया, लिल्लाही बन गया। ये दो वर्ड है, एक वर्ड नहीं है। लिल्लाही, इसमें ली भी है। ली का मतलब क्या होता है? ली पढ़ा है हमने, ली का मतलब क्या होता है? ली का मतलब होता है लिए। अगर नहीं पढ़ा तो जी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लिए, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें। तमाम का तर्जुमा आ रहा है इस अलिफ लाम से। इस अलिफ लाम का तर्जुमा भी तमाम जहानों का रब है, आलमीन, तमाम जहानों का रब। ये भी आपका वो ही है, देख लें, रब्बुल आलमीन था, तो पीछे से मिलाने से रब्बिल आलमीन हो गया। तो रब्बिल इस आलमीन। तरीके से ये है, जब आप पढ़ लोगी ना, अभी तो हमारे दो चार लेसन पढ़े अरबी के, अभी आप चौथे लेसन पे हो ना आज। अर पांच। रहमान, जो भी है, चार पढ़ लिए ना, पांचवें पे। अब देखो, ये अलिफ लाम आया तो एक हरकत आती है, समझ आई है? जब भी अलिफ लाम आएगा तो जी एक हरकत आएगी। मालिकी यौमिद्दीन, दीन होता है जजा सजा का दिन, यौमिद्दीन होता है जजा सजा का दिन, जजा सजा के दिन का मालिक। काम। का तर्जुमा आएगा ना, मालिक यौमिद्दीन। जब लफ्ज मिलते हैं तो का की का तर्जुमा। बर तो ये इस तरीके से उसको पढ़ना होता है। अल्लाह भी हमने पढ़ लिया, पढ़ा है ना? जी अल्लाह, अल्लाह पढ़ा है ना? और क्या क्या जी पढ़ पढ़ा है ली? हाँ, क्या क्या पढ़ा है हमने? हमने। बी, बी भी नहीं पढ़ा, लाम भी नहीं पढ़ा, अभी वो पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है ना? अब जी जालिकल किताबू, जालिका पढ़ लिया, एग्जाम। किताब भी पढ़ लिया, जी वो ला भी भी पढ़। पढ़ लिया, है ना? ला जी इलाहा इल्लल्लाह, उसमें मैंने बताया। फी भी पढ़ लिया, है ना? फी भी पढ़ लिया। और यहाँ पे देखो दो जबर आ रहे हैं। अब ये ली है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बी भी पढ़ेंगे, इला भी पढ़ लिया हमने, है ना?
الہ کا کیا میننگ जी। بتایا تھا میں نے؟ الہ، الہ پڑھایا نا میں نے آپ کو کل. इला इला का मीनिंग होता है तरफ। طرف. الیکا، آپ کی طرف. الیکا کا مطلب ہے تمہاری، کا کا مطلب آپ ہوتا ہے، تمہاری طرف. یہ خود ہی ترجمہ آتا جاتا ہے، جب آپ ادھر پڑھ لو گی نا تو ادھر خود ہی آپ ترجمہ کر لو گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے نیچے ترجمہ وغیرہ. پلین قرآن میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا ترجمہ. لیکن اس کے हमने لیے، मिल भी पढ़ ली। ہاں من بھی پڑھ لیا آپ نے، واو بھی پڑھ لیا ہے نا. تو یہ سارے जी لفظ آہستہ آہستہ پڑھیں گے. اللہ ہے نا، من، وہی जी ریپیٹ ہو رہے ہیں. صحیح ہے نا. اللہ پھر آ گیا، جوڑ کے آ گیا نا ہم کے ساتھ. اللہ، اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، پر ہے نا. ان जी کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے سماعت پر پردہ ہے. جو گھروں میں پردے لگاتے ہیں ان کو غشاوہ کہتے ہیں. من ہے نا، من जी کی وجہ سے یہاں زیر آ گیا نا. ویسے تو الناسو ہوتا ہے، لیکن جب من آیا تو اس نے زیر دے دی. اللہ ہو ہوتا ہے، لیکن بی آیا تو اس نے اللہ ہی کر دیا. الیوم ہوتا ہے، بی آیا اس نے زیر دے دی. اپنے اندر شوق پیدا کرو اور دعا کیا کرو. تم تو نماز پڑھتی ہو، نماز پڑھ کے دعا مانگا رب زدنی علما رب زدنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے نبی ہوتے ہوئے. رب زدنی علما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے میرے رب میرے دل میرے رٹ رٹے نہیں، ربی، اے میرے رب. یہ ایک اس کے اندر اے بھی آ رہا ہے، اور میرے بھی آ رہا ہے، اور رب بھی آ رہا ہے. ایک لفظ، ایک لفظ رب کے اندر نیچے زیر لگی ہوئی ہے، ربی بولنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے تین، اردو میں تین لفظ بنتے ہیں. اے میرے رب. سمجھ کے پڑھو جو بھی پڑھنا ہے. میرے اور اے کے لیے یا بتایا نا میں نے آج، اور میرے जी کے لیے یہ والی یا ہوتی ہے، یہ والی یا میرے کے لیے. ٹھیک ہے. اور رب जी تو رب ہوتا ہے، اور یہاں پر صرف ربی سے سارا ترجمہ آ رہا ہے. اے میرے رب. تو کیا ہے ربی؟ ربی रब्बी मतलब زدنی. زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر. زیادہ کا لفظ ہوتا ہے نا، اسی سے زد بنا ہوا ہے. یہ دوسرا والا زد نہیں ہے جو بچے زد کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ والا زد ہے. ربی زدنی علما. علمن ہے لیکن ہم اس کو وہاں رک جاتے ہیں. رب زدنی، زیادہ کر مجھے، زیادہ کر دے مجھ کو علم میں. اب علم کی جگہ کوئی اور چیز لگا سکتے ہیں. علمن تو علم ہو گیا، ایمان نن بھی لگا سکتے ہیں، ہے نا. اور کیا، जी نور، نورن، نورن لگا دیں گے تو نور ہو جائے گا، ہے نا. لگانا اسی طرح ہے، دو زبر کے ساتھ الف. ایمانن جیسے علمن تھا نا، تو ایمانن जी رب زدنی ایمانن و نورن و مالن. مال میں بھی زیادہ کر دے، مال، مالن و اولادن، اولاد میں. تو اس طریقے سے ہے. آگے جو مرضی لگا لے. رب زدنی علمن، تو علمن ہوتا ہے. تو جو بھی پڑھے سمجھ کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے بغیر کوئی فائدہ نہیں. رٹا رٹایا تو اے میرے اللہ زیادہ کر دے، اے میرے رب، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو، نی مجھ کو.
کس میں؟ علم میں۔ علم ہے۔ علم میں زیادہ کر۔ اگر مال چاہیے تو مال لن، کچھ لوگ مال مانگتے ہیں نا، مالن، نورن، کچھ نور مانگتے ہیں، کچھ ایمان مانگتے ہیں، کچھ کچھ مانگتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس طریقے سے جی ہوتا ہے۔ لیکن یہ مردن آ گیا نا، اور زیادہ، وہ زیادہ بھی کر دیا۔ ابھی ہم نے کہا تھا زدنی، اب یہاں پہ زیادہ آ گیا۔ زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر دے مجھ کو، آگے نی بھی آیا تھا، یہاں پہ زیادہ ہم، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرض میں، اللہ نے ان کو مرض میں زیادہ کر دیا، یعنی ان کا مرض بڑھا دیا، بیماری کو بڑھا دیا۔ فی، فی پڑھ لیا ہم نے۔ قلوب کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتے ہیں نا، قلب جی ہوتا ہے ایک دل۔ جیسے اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، انگلش میں ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی۔ قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ صحیح ہے؟ وہ کا مطلب اور ہوتا ہے، اور ان کے لیے عذاب، عذاب تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جی ہے نا؟ علیم، دردناک۔ علم ہوتا ہے نا، علم، المناک ہوتا ہے، اردو میں لفظ بولتے ہیں نا، المناک حادثہ پیش آ گیا، خبریں سنتی ہو، المناک آتا ہے نا؟ جی آتا ہے۔ المناک کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ تو علیم، دردناک۔ علیم کا بھی یہی مطلب ہے، دردناک۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اردو میں المناک بولتے ہیں، عربی میں علیمن بولتے ہیں۔ ایک یہ والا علیمن ہے اور ایک یہ والا علیمن ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ جو فرق ہے، علیم ہے، جی، ہاں۔ یہاں پر عین لام آ رہا ہے اور دوسرے میں الف لام آ رہا ہے۔ میننگ میں کیا فرق ہے؟ یہ تو المناک ہو گیا نا، دردناک ہو دردناک۔ گیا نا، یہ کیا ہے؟ علیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم۔ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے علیم، عظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، رحیم۔ جی تو علیم کا مطلب ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، بہت زیادہ علم والے ہیں اللہ، جو ہم نہیں جانتے نا، جی وہ بھی سب اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے پاس بہت علم ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسے جو سمندر میں ایک سوئی ڈبو تو پانی کتنا آتا ہے، یا انگلی ڈبو تو کتنا پانی آتا ہے، وہ ہمارا علم ہے، اور باقی سمندر اللہ کا علم ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر بندے جی کو جانتے ہیں، کس کو کہاں کھانا دینا ہے، کس کو پانی دینا ہے، کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، اس کو صحت دینی ہے، کس کو کیا حاجت ہے اس کی پوری کرنی ہے، اور کس کی دعا سننی ہے۔ خانے کعبے میں کتنے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں طواف، ہر ایک کی دعا سن رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو علیم ہے نا اللہ تعالیٰ۔ یہ علیم الف سے ہے، دردناک، اور وہ علیم ہے بہت زیادہ جاننے والا، علم والا، علم سے علیم ہوتا ہے، یہ علم سے علیم ہے۔ تو اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو آج میں جو لا الہ الا اللہ بتایا نا، اس کو صحیح کر کے چیک کرو، سب کو، سب سے پڑھواؤ کہ وہ لا پورا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے الف کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے غلط پڑھ رہے ہیں، الٹا مطلب ہو جاتا ہے۔ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ کہ کوئی اور بھی خدا ہے اللہ کے سوا، شرک ہو گیا نا؟ جی ہاں، سیدھا سیدھا شرک ہو جاتا ہے۔ چلو اوکے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے صحیح پڑھنے کی۔ تو جو، جس کے پاس غلطی ہے اس کا صحیح کرا دو، ٹھیک ہے نا؟ صحیح پڑھنے لگ جائے گا تو دیکھیں اس لا میں، یہ لا ہے نا، یہ لا ہے، لہم، لہم، اس کو لا نہیں پڑھنا۔ اور یہ والا جو لا ہے، یہ والا، یہ والا، یہ والا لا، دونوں ایک ہی ہیں، ان کا، اس کو لا نہیں پڑھنا،
اس کو لا نہیں پڑھنا اور اس کو لا نہیں پڑھنا، اس کو لا پڑھنا ہے، اس کو لا پڑھنا ہے، اس میں الف نہیں ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو کلمے میں ہمارا یہ والا لا آتا ہے نا، لا، تو اس کو پھر لا الہ الا اللہ لمبا کرنا ہے۔ سب کا سنو، جتنے لوگ ہیں نا سب کا سنو، تمہاری ڈیوٹی بنتی ہے، تمہیں پتہ لگ گیا تم سنو، جتنے بچے ہیں سب کا سنو، ان سے کلمہ سنو، اوکے؟ جی تو علم کیوں حاصل کر رہے ہیں ہم؟ دوسروں پہ روک جاڑنے کے لیے کہ مجھے تو نہیں، بڑا آ گیا ہے، میں تو بڑی چیز بن گئی ہوں؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ علم آنے سے نا تو اور زیادہ انسان کے اندر وہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا، یہ والی چیز ہونی چاہیے۔ اور سیکھنا ہے، اور سیکھنا ہے، اور سیکھنا ہے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کوئی جانا تو نہیں ہوتا ہے اس وقت میں بٹھا لیا ہے؟ نہیں، نہیں، گھر پہ ہی ہوتی ہوں نا اس وقت؟ ٹھیک ہے، جب جانا ہوا تو مجھے جی، بتا دینا، میں بند کر دوں گی پھر۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔